بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوندا میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خداوندا میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں۔ فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا، مگر پرواز کرتا ہوں، ہاں مگر پرواز کرتا ہوں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صدق اللہ العظیم۔ نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی، نسیم صبح امن و عافیت ہر سو پکار آئی، مبارک ہو اے اہل محفل کہ اب گلشن میں بہار آئی۔ قابل قدر حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہ اسٹیج پر تشریف فرما، معزز حضرات اساتذہ اور موقر مہمانان کرام اور عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں آپ سبھی کو موسم بہار کے خوش رنگ اور لہلہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ 79ویں جشن یوم آزادی کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال اس یوم آزادی کو ہمارے لیے اور وطن کے لیے امن و عافیت اور سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، دیگر پروگراموں کی طرح آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی آپ حضرات کی خصوصی توجہ اور اہمیت کا حامل ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یوم آزادی احساسات کی وادیوں میں صبح کی پہلی کرن ہے۔ یوم آزادی ہندوستان کے خوابوں کی تعبیر و تکمیل کا موقع ہے۔ یوم آزادی ہمارے بزرگوں کی بے تحاشا قربانیوں کی دستار فضیلت کی ضمانت ہے۔ اس لیے ہم سب یہاں یوم آزادی کے موقع پر جمع ہوئے ہیں اور اپنے ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے جنہوں نے وطن کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کو نیچھاور کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں ان تمام شہدائے وطن کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین آزادی کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ قبل اس سے کہ میں یوم آزادی اور اس کے پس منظر پر تفصیل سے روشنی ڈالوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کشتی کا کوئی ملاح نہ ہو وہ کشتی ڈوب جایا کرتی ہے، جس ملک کا کوئی حاکم نہ ہو اس ملک کا نظام درم برم ہو جایا کرتا ہے، جس قبیلے کا کوئی سردار نہ ہو وہ قبیلہ بچھڑ جایا کرتا ہے۔ جس طرح کشتی کے لیے ملاح کا ہونا ضروری ہے، جس طرح ملک کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے، جس طرح قبیلے کے لیے رئیس القبیلہ چنا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح کسی بھی مجلس اور کسی بھی بزم کو منزل مقصود تک لے جانے کے لیے صدر مجلس کا بھی ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، تاکہ مجلس بحسن خوبی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ تو آئیے آج کی اس بزم کی صدارت ایک ایسی شخصیت کے حوالے کرتے ہیں جو ہم سب کے درمیان اور خاص طور سے اسٹیج پر حضرات اساتذہ کے درمیان ایسے جلوہ نما ہے جیسے شب تاریک میں کہکشاں کے درمیان مہتاب جلوہ نما ہو، جن سے میری مراد ہم سب کے مشفق و کرم فرما ہمارے بزرگ استاد الاساتذہ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس انتخاب کی حاضرین مجلس سے پرزور تائید کی جائے گی۔ صدارت کے لیے جس ذات گرامی کا انتخاب کیا گیا ہے، میں اپنی طرف سے اور اپنی تمام رفقا کی طرف سے پرزور انداز میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ صدارت کی تعین کے بعد ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی بزم کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تلاوت کلام اللہ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کی اس بزم کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں۔
اس لیے کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ تلاوت کلام اللہ کے لیے جناب قاری محمد شاہد صاحب استاد شعبہ تجوید و قرات مدرسہ ہزار کو دعوت دیتا ہوں۔ تلاوت کلام اللہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم زین العابدین کو اس شعر کے ساتھ کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ جناب قاری زین العابدین صاحب مائک پر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعلم ممن افترى على الله الكذب ماشاء اللہ ماشاء والله لا يهدي القوم الظالمين ماشاء اللہ۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ تلاوت کلام اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ایسی ہے کہ جس کا تذکرہ خیر کیا جائے تو آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیزم محمد کاشف متعلم مدرسہ حضا کو کہ وہ آئے اور نعت نبی گنگنائے۔ عزیزم محمد کاشف۔ میں اپنے معزز مہمانان سے بڑے ہی ادب سے درخواست کروں گا کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑا مہربانی آگے تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے بتاؤ۔ کالی کملی والے کی، کالی کملی والے کی ہر ادا کالی کملی والے کی ہر ادا ملالی ہے، آپ کا ترانہ تھا نا جی، کون سا ترانہ ہے؟ ہم اسلامی مذہب ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ذیشان محمد ذیشان۔ ہم اسلامی مذہب ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اور کون تھا یہ؟ ٹھیک، پانی پلو پر صاحب کا جو میرے ساتھ ہے نا وہ پانی لینے کے لیے نیچے میں دلوا دیں گے۔ روشنی نکالی ہے، کفر کے اندھیروں سے روشنی نکالی ہے، اور دامن رسالت سے ہو گیا جو وابستہ، دامن رسالت سے، دامن رسالت سے ہو گیا جو وابستہ، ہو گیا جو وابستہ، بن گئی ہے یہ دنیا آخرت کمالی ہے، بن گئی ہے یہ دنیا آخرت کمالی ہے، کالی کملی والے کی، اور جس نے ان کو دیکھا ہے، جس نے ان کو دیکھا ہے، ہو گیا فدا دل سے،
جس نے ان کو دیکھا ہے ہو گیا فدا دل سے، ہو گیا فدا دل سے، ان کا چہرہ انور کس قدر جمالی ہے، ان کا چہرہ انور کس قدر جمالی ہے، کالی کملی والے کی۔ السلام علیکم۔ تلاوت کلام اللہ اور نعت رسول اللہ کے بعد اب میں اپنے پروگرام کے اصل مقصد کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں۔ سب سے پہلے پرچم کشائی ہوگی، لیکن قبل اس سے کہ پرچم کشائی ہو آپ لوگ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور جیسے ہی پرچم کشائی ہو اور گل زمیں بوس ہو آپ اپنی زوردار تالیوں کی کھٹکھناہٹ کے ساتھ ترنگے کا استقبال کریں گے۔ تو لیجیے ترانہ ہند گنگنانے کے لیے میں آواز دیتا ہوں عزیزم محمد سعود اور ان کے ہم نوا مائک پر تشریف لائیں، اور اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، ناظم تعلیمات مولانا عبدالستار صاحب سے، اور تشریف لائے ہمارے معزز جملہ مہمانان کرام سے کہ وہ بھی پرچم کے پاس تشریف لا کر پرچم کشائی کرتے ہوئے ہمارے ملک کی آن بان اور شان میں چار چاند لگائے۔ جلدی سے جلدی شروع کر اپنا پرچم کشائی بھی شروع کر دینا، ایک ادھر آ جاؤ ایک ادھر آ جاؤ۔ آ جائیے آپ بھی آ جائیے سر جی۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سن پری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ اے آتے رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم وطن ہے
हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी नामो निशा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जमा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अरे क्या करें, फूल थोड़े नहीं, थोड़े कहाँ होते हैं तो। दिन खुशी का देखो आज फिर आया है, दिन खुशी का देखो आज फिर आया है, तिरंगा मादरे वतन का खुलकर मुस्कुराया है, तोड़कर गुलामी की जंजीरों को देखो परचम कैसे लहराया है, देखो परचम कैसे लहराया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यौम आज़ादी और उसका पस मंज़र, इस पर मुख्तसर रोशनी डालने के लिए मुझे हुक्म हुआ है। अगरचे आप हजरात के सामने मेरी औकात और बिसात नहीं है कि मैं इस मौजू पर लब कुशाई करूं, मगर चूंकि मुझे हुक्म हुआ है इसलिए चंद बातें आप हजरात के सामने मैं अर्ज करना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही, सच और हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, किसी भी तमहीदी कलिमात का सहारा लिए बगैर मैं पूरी जुर्अत के साथ कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों से बाकायदा मुनज़्ज़म जंग की इब्तिदा जनाब नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने 1754 में की। कलकत्ता का डायमंड हार्बर और फोर्ट विलियम अंग्रेजों के कब्जे में था। अली वर्दी खान ने जब फोर्ट विलियम पर कब्जा किया तो अंग्रेज डायमंड हार्बर में जा छुपे और उन्हें सख्त शिकस्त से दो चार होना पड़ा। फिर अली वर्दी खान के नवासे नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी फिरासत से ये भांप लिया कि अंग्रेज उनके मुल्क में रफ्ता रफ्ता देर सवेर काबिज हो जाएंगे, लिहाजा उनकी शौकत और हौसले को तोड़ना बेहद जरूरी है। और उन्होंने पूरी कुव्वत से अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन साजिशों के नतीजे में 1757 में अंग्रेजों ने उन्हें उनके दारुस सल्तनत मुर्शिदाबाद में शहीद कर दिया। प्लासी की जंग 1757 और बक्सर की 1769 में भी हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुई और फिर अंग्रेज बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर पूरी तरह काबिज हो गए। मेरे दोस्तों, दक्कन के फरमारवा हैदर अली खान और उनके साहिबजादे फतेह अली खान टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ मुसलसल 4 जंगें लड़ी। ये हमेशा उनके लिए चैलेंज बने रहे और एक मजबूत चट्टान बनकर सामना किया। बिलाखिर 1799 में अपनों की दगाबाजी के सदके टीपू सुल्तान ने ऐदोबंद की जिंदगी पर मौत को तरजीह दी और अपनी कही हुई बात को सच कर दिखाया कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जनरल गौस को जब सुल्तान की शहादत की खबर मिली तो उसने सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नाश पर खड़े होकर यह जुमला कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। इस वाक़ये के बाद दिल्ली में एक तहरीक कायम की गई जिसके बानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी थे। इस
तहरीक को उनके साहिबजादे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने आगे बढ़ाया और 1803 में इंग्रेज के खिलाफ जिहाद हुर्रियत का फतवा दे दिया। सैयद अहमद शहीद को लिबरेशन मूवमेंट का कायद मुकर्रर किया और 1831 में सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद ने अपने रुफाका समेत जामे शहादत नोश किया। मेरे दोस्तों, ये वलीउल्लाह की तहरीक अपनी पूरी आबोताब के साथ रवां दवा थी कि 1847 में इसकी बागडोर उलमाए देवबंद ने अपने हाथों में ली। शामली का मैदान सजा, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अमीर मुकर्रर हुए, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी और हजरत मौलाना मुईन नानोतवी को कायद मुकर्रर किया। हजारों की तादाद में उलमा ने शिरकत की और अवाम खास ने मुल्क की आजादी के नाम पर अपनी जानों को नेछावर किया, औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम किया, मगर फिर भी ये जंग फतह ना हो सकी। अलबत्ता फतह का शाना बशाना जरूर साबित हुई। मेरे दोस्तों, तारीख शाहिद है, जमीन आसमान गवाह है कि 1857 से शुरू होने वाली ये जंग 1947 तक मुसलसल जारी रही। इस दौरान न जाने कैसे कैसे मजालिम ढाए गए, तरह तरह की अजियतें और तकलीफें दी गई, गैरों के साथ अपनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उलमा का कत्लेआम किया गया, उन्हें दहकते हुए तेल और शोलों में डाला गया, जेलों की सलाखों के पीछे धकेला गया, सूली पर चढ़ाया गया। बिलाखिर इन तमाम कुर्बानियों और तवील जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान इंग्रेज के नापाक चुंगल और खुखार पंजे से आजाद हुआ। 29 अगस्त 1947 को 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। तकरीबन 2 साल 11 माह और 18 दिन बाद कानून तरतीब दिए गए। 24 नवंबर 1949 को उसे कबूल किया गया और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। अलबत्ता मौलाना हसरत मोहानी ने दस्तूर के एक ड्रॉप पर एक नोट लिखा। वो नोट ये था कि आइन इंग्रेज के ही आइन का इजरा और तोसी है, लिहाजा इससे आजाद हिंदुस्तानियों और आजाद हिंद का मकसद पूरा नहीं होता। बहरहाल 26 जनवरी 1950 को एक तवील तरीन तहरीर शुदा सियासी आइन का इनेकाद हुआ और इस तरह हिंदुस्तान खुद मुख्तार और जमहूरी मुल्क बन गया। मेरे दोस्तों, आजादी और जमहूरियत ये 2 ऐसे लफ्ज हैं जो किसी भी मुल्क, किसी भी कौम और किसी भी फर्द के लिए काफी अहमियत रखते हैं। बुनियादी तौर पर इस आइन में 395 दफात, 22 अबवाब और 8 शेड्यूल थे, जिनमें मुख्तलिफ मौके से कई तरमीमात की गई। इख्तिदार की बागडोर देने के लिए सारा इख्तियार आवाम को दिया गया और हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर फर्द को वोट देने का मुकम्मल हक हासिल हुआ। मुखालिफ की दखल अंदाजी को नजरअंदाज करते हुए एक मुश्तरक और सेकुलर हुकूमत को फरोग दिया गया। प्यारे बच्चों, नाफिज करदा दस्तूर में 7 हुकूक बतौर खास जिक्र किए गए। हक मुसावात, हक आजादी राय, इस्तिहसाल से हिफाजत का हक, मजहबी आजादी का हक, तालीमी और सकाफती हुकूक, जानदार के हुकूक और दस्तूरी मामलात और मुहावरात के हुकूक। गोया इसमें समाजी, माशी और सियासी तमाम हुकूक शामिल थे, मगर अफसोस आज इन तमाम आइन को पसे पुश डाल दिया गया है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की दूसरी बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद आज उन्हें अकलियत में गर्दाना जा रहा है। कभी मस्जिदों पर ताले, तो कभी अजान पर पाबंदी, तो कभी यकसा सिविल कोड की धमकी, गर्ज हर तरह से जमहूरियत का खून करके उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और गजब ये है कि कातिल ज़माना मसीहा कौम बना बैठा है और हमारी कुर्बानी को नजरअंदाज करके हमसे हुब्बुल वतनी और देश प्रेमी होने का सबूत मांगा जा रहा है। और वो लोग ये भूल गए कि तहरीक अहरार चली तो आगे हम थे। 1769 का मुकाबला था
तो आगे हम थे, 1757 की जंग थी तो आगे हम थे, फिरंगी से मुकाबला था तो आगे हम थे, बरतानवी से मुकाबला था तो आगे हम थे, तहरीक रेशमी रुमाल चली तो आगे हम थे, तहरीक तर्क के मवालात चली तो आगे हम थे, मुल्क छोड़ो हिंदुस्तान छोड़ो आंदोलन चला आगे हम थे, मार हमने खाई, फांसी के फंदे हमारे गले में लगे, जेलों की सलाखों को चुमा, बेड़ियों का जेवर पहना, गर्दनें हमने कटाई, गर्दनें कटाते गए, सीना छलनी होता गया, लेकिन किसी बातिल, किसी जालिम और जाबिर के सामने गर्दनें नहीं झुकाई। हमारी तारीख पढ़, हमारी रुएदात पढ़, हमारी कहानियां पढ़, हमने गर्दनें कटाई तो है लेकिन किसी बातिल के सामने गर्दनें झुकाई नहीं। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वक्त की तंगदामनी को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब तराना गुनगुनाने के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद जीशान को कि वो आए और अपना तराना पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमानों के आगे तो रख दो बस। हम इस्लामी मज़हब एक मिनट मोदी साहब नाम तो एक फिर जाएगा। हम इस्लामी मज़हब है, हर जगह चमकते हैं। हम इस्लामी मज़हब है कि हम इस्लामी मज़हब हैं। हम इस्लामी मज़हब हैं, हर जगह चमकते हैं, हर जगह चमकते हैं, हर जगह आज़ादी को, हर जगह आज़ादी को हम सभी मनाते हैं, हर जगह आज़ादी को। कि आज़ादी आई है, कि आज़ादी आई है, उलमा की कुर्बानी से ये आज़ादी आई है, कि ये आज़ादी आई है, उलमा की कुर्बानी से, उलमा की कुर्बानी से कितनी खुशियाँ होती है, कितनी खुशियाँ होती है आज के आज़ादी में, कितनी खुशियाँ होती है। कुछ बताओगे थोड़ा बहुत, एक दो मिनट मालूम करना था बस, इसलिए मालूम कर रहा था। बोलेंगे थोड़ा बहुत, एक दो बात। अच्छा, एक दो बात कुछ। जंगे हिंदुस्तानी में, जंगे हिंदुस्तानी में सबसे पहले जाते हैं, सबसे पहले जाते हैं, और अंग्रेजों के गाने पे हम सभी उड़ाते हैं, अंग्रेजों के गाने पे हम सभी उड़ाते हैं। हम इस्लामी मज़हब हैं,
ہر جگہ چمکتے ہیں، ہر جگہ آزادی پہ ہم سبھی مناتے ہیں، ہم اسلام موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے پروگرام کی اگلی کڑی محمد عفان کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ بچہ آپ حضرات کے سامنے مسلم فریڈم فائٹر سے متعلق آپ لوگوں کو انگلش میں تقریر پیش کریں گے، آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ ایک بار زوردار تالیوں سے بچے کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning, respected principal, teachers, and all my dear friends. My name is Affan. I am studying 9th class. My speech on role of Muslim freedom fighters in freedom struggle. The first war against the British was fought almost 200 years before independence. The Battle of Plassey Hill in Nawab Sirajud-Dowlah of Bengal was treacherously defeated by the British in 1757. The first sign of victory against the British was the speech in Mysore by Nawab Hyder Ali, first waged war British in 1782. He was succeeded by Tipu Sultan, who again fought them in 1791 and was eventually treacherously and martyred in 1799. Tipu Sultan was the first general to use missiles in warfare. The Indian National Congress, from the time of its inception to independence, has seen a president who were Muslim gangster. M.K. Gandhi said in a law firm in South Africa, owned by Muslims, who on his own independence has struggled. He was, hence we can conclude, Muslims major in Indian independence struggle. I thank each and everyone for being here. Thank you, sir. Thank you, everyone. ویری گڈ اسپیچ۔ اب میں ایک چھوٹا سا بچہ اور ہے محمد ریحان، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے اپنی اسپیچ پیش کریں گے۔ ایک بار زوردار تالیوں سے ان کا بھی استقبال کیا جائے۔ شاباش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 15 اگست ہمارا سوتنترتا دیوس ہے. یہ دن ہمیں ان مہان نیتاؤں کی یاد دلاتا ہے جن میں مولانا عبدالکلام آزاد کا نام اگرنی ہے. انہوں نے کہا تھا ہم ہندو ہیں یا مسلمان، پہلے بھارتیہ ہے اور بھارتیہ بنے رہیں گے. مولانا آزاد نے شکشا ایک اور بھائی چارے کو بھارت کی طاقت مانا. ان کی سوچ تھی کہ ہر بچے کو اچھی شکشا ملے اور دیش میں سبتا بنا رہے. آئیے ہم سنکلپ لیں کہ ان کے آدرشوں پر چلتے ہوئے بھارت کو شکشت، مضبوط اور ایک جٹ بنائیں گے. جے ہند، جے بھارت. بہت اچھا، ویری گڈ۔ ایک چھوٹا سا بچہ اور ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے انگلش میں اپنی اسپیچ دیں گے۔ محمد ابو بکر وہ آئے اور وہ بھی اپنی انگلش میں اسپیچ پیش کرے۔ اس بچے کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ماشاء اللہ بھائی، واہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning, respected principal, teachers, and all my dear friends. My name is Muhammad Abu Bakr. I am from the area studying class 3rd A. In India, we struggle for independent people from all religions, communities, played vital role. Our Muslim freedom fighters like Maulana Abdul Kalam, Azad Khan, Abdul Ghaffar Khan, Asfaqullah Khan, and Hakim Ajmal Khan should unite courage and sacrifices. Thank you, sir. Thank you, everyone. Jai Hind, Jai Bharat. ویری گڈ۔ میرا ملک میرا دیش میرا ہے چمن، یہ ترانہ گنگنانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عفان، محمد سعد اور ان کے ساتھی آئے اور اپنا ترانہ پیش کرے۔ ختم اس کے بعد دعا ہے۔ آپ بتائیں جی۔ میرا دیش میرا چمن، میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن، شانتی کا، انتی کا پیار
चमन शाबाश। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन मेरा मिस्त्री मुल्क साहब, मेरा लाइट नहीं देश है? मेरा लाइट मिस्त्री शांति कहाँ हो? चार्जिंग उन्नति का प्यार डाउन का चला बहुत। चमन इन्वर्टर पे चल रहा है उससे लाओ जनरेटर पे, इन्वर्टर पे जनरेटर पे। मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन जाने मन अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे कोना कोना अपने देश का सजाएंगे जश्न होगा जिंदगी का होगा सब मगन के वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन जाने मन चलो वेरी गुड, चलो शाबाश, वेरी गुड। अब मैं अपने प्रोग्राम की आखिरी कड़ी हजरत मोहतमीम साहब दामत बरकातुहुल आलिया से बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दरखास्त करूंगा कि हजरत वाला हम बच्चों को अपने कीमती मशवरों और नसीहतों से और साथ ही अपनी नेक दुआओं से इस प्रोग्राम को इख्तिताम पसीद फरमाए। हजरत मोहतमीम साहब दामत बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बून फ़ीहा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अजीज तलबा, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, हमारा ये आज का प्रोग्राम यौम आज़ादी, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तफसीली और मुख्तसर गुफ्तगू हो चुकी है। मुझे उन बातों को दोबारा जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे इस वक्त में एक दो बात आप लोगों से अर्ज करनी है। जो मैंने कुरान हकीम की आयत आपके सामने पढ़ी है, इस आयत के अंदर हमें इस बात को बताया गया है कि अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। इतनी नेमतें हैं कि अगर हम उनको शुमार करना चाहें तो शुमार भी नहीं कर सकते। उन नेमतों में से आप एक नेमत देख लीजिए, आप और हम सब जितने भी हैवानात हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक सांस लेते हैं। अगर ये सांस आना बंद हो जाए तो फिर पता चलेगा ये कितनी बड़ी नेमत है, और इसको अगर हम शुमार करना चाहें तो शुमार भी नहीं कर सकते। तकरीबन यही हाल हमारी आज़ादी का और गुलामियत का है। आज हम इस मुल्क के अंदर आज़ाद हैं, गुलामियत से हम निकल चुके हैं। इसका हमें एहसास नहीं है कि हम कितने नफ़े के अंदर हैं और गुलामियत के अंदर हम कितने नुकसान के अंदर थे। बहरहाल ये ऐसी एक चीज़ है कि जब ये चीज़ सल्ब हो जाती है, छिन जाती है, फिर उसका एहसास होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर इंसान उन नेमतों के बारे में गफलत में रहते हैं। एक तो इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती है, और दूसरे उसका फारिग और खाली होना है। जब इंसान की तंदुरुस्ती और सेहत चली जाती है और बीमार होता है, उसके बाद पता लगता है कि सेहत और तंदुरुस्ती कितनी बड़ी चीज़ थी। इसी तरीके से इंसान जब मशगूल हो जाता है, जब गुलाम बन जाता है, फिर पता लगता है कि आज़ादी कितनी अहम और बड़ी चीज़ थी। बहरहाल एक बात यह है कि गुलामियत हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुई, उसकी वजह यह है कि जब इंसान और मुसलमान
अल्लाह का गुलाम बनना छोड़ दे, अल्लाह का बंदा बनना छोड़ दे, तो फिर परवरदिगार आलम की जमीन के ऊपर उस इंसान को लोगों का गुलाम और बंदा बनाते हैं। अंग्रेज आया और आने के बाद में इस मुल्क के अंदर उसने अपनी हुकूमत की। तकरीबन मुसलमानों ने तने तना 200-250 साल तक उसके साथ में जिहाद किया और उसके अंदर तकरीबन नाकामी होती रही। 1857 में फिर मुसलमानों ने दूसरे लोगों को भी शामिल किया और उसके बाद में फिर सब लोगों ने मिलकर अंग्रेज का मुकाबला किया, लेकिन उसके बाद में भी उन प्रोग्रामों के अंदर मुसलमानों की तादाद ही ज्यादा थी, दूसरे लोगों की तादाद बहुत कम थी। बहरहाल वो भी शामिल हो गए और होते होते हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आज़ाद हैं। आज़ाद होने के बाद में हमारी जो कौम है उस कौम ने एक एतबार से तालीम से अपना रुख हटा लिया और मोड़ लिया, जिसकी वजह से हमें इस मुल्क के अंदर आज हुब्बुल वतनी का सबूत पेश करना पड़ रहा है और बहुत सारी जगहों पर हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। मैं अपने अजीज तलबा से और सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हम तालीम से सही माने में जुड़े। हमारे पास में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी हम इस परेशानी से और इस उलझन से निकल सकते हैं। एक तो होती है अफराद की गुलामी, हुकूमतों की गुलामी, और एक गुलामी होती है जहनी। समझिए कि हम 1947 में अफराद की और कौम की गुलामियत से तो निकल गए थे, लेकिन जहनी गुलामियत से हम आज तक नहीं निकले। जहनी गुलामियत क्या है? जहनी गुलामियत ये है कि जैसे दूसरे लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, या जो तालीम वो लेते हैं उसी को हम अपनाए हुए हैं, बल्कि हमारे पास में तो हर चीज का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका दिया है कि आपका तालीम का तरीका ये है, आपके खाने का तरीका ये है, आपके पहनने का तरीका ये है। उन तरीकों को हमने अपनाया, उस तालीम को हमने तर्क किया, जिसका नतीजा आज हमारे सामने ये है। सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर आज मुसलमान जिल्लत परेशानी की जिंदगी गुजार रहा है, इसलिए कि उसने अल्लाह को नाराज किया है और उसने अल्लाह का बंदा बनना, अल्लाह का गुलाम बनना पसंद नहीं किया। तो परवरदिगार आलम ने इस जमीन के अंदर उसको लोगों का गुलाम बना दिया और उसको रुस्वा और जलील कर दिया। तो मेरा मंशा और मकसद कहने का यहाँ ये है कि ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। मस्जिद के अंदर आज़ादी से मुताल्लिक बहुत तफसीली और कलीदी बयान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मुख्तसर बातें आपके सामने आई। 2 साल पहले भी मैंने एक मशवरा दिया था कि हमारे असातिज़ा को चाहिए और हमारे जिम्मेदारान को चाहिए कि जंग आज़ादी से मुताल्लिक अच्छा खासा मवाद किताबों की शक्ल में मदरसे के अंदर जमा करें और तलबा को मुताले के ऊपर लगाएं, और ताकि वो इसकी तैयारी करें और खुद ही वो अपना प्रोग्राम पेश करें। असातिज़ा की मौजूदगी में एक आध बयान हमारे किसी उस्ताद का हो जाए, बल्कि ज्यादातर प्रोग्राम बच्चों का होना चाहिए। मैं इस सिलसिले में फिर दोबारा आज यही दरख्वास्त कर रहा हूँ, परवरदिगार आलम हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। जो शर और फितने वाली चीज है अल्लाह उससे हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें और हमारी कौम को दीन की सही समझ अता फरमाए, और हमें इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों का हासिल करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमें जब तक दुनिया में रहना है इल्म दुनिया की भी ज़रूरत है, असली उलूम की भी ज़रूरत है और दीनी तालीम की भी ज़रूरत है। हमें इन दोनों तालीमों को सही तरीके से लेकर चलना है और सही तरीके से खुद भी पढ़ना है और अपनी कौम के लोगों को भी इस तरफ मुतवज्जे करना है कि वो भी तालीम से जुड़े और तालीम से वाबस्ता हो, तो फिर इंशाअल्लाह नफ़ा होगा। हमारे इस मुल्क के अंदर एक जैन बिरादरी है, उस बिरादरी का कोई फर्द ऐसा नहीं है कि जो लिखा पढ़ा ना हो। उन्होंने कोशिश की और जद्दोजहद की कि अपने यहाँ जहाँ स्कूल की जरूरत, छोटे स्कूल की जरूरत, वहाँ छोटा स्कूल कायम किया, जहाँ बड़े स्कूल की जरूरत थी वहाँ बड़ा स्कूल कायम किया। बहरहाल उन्होंने अपने लोगों को, तमाम लोगों को बिरादरी की तालीम दी और देने के बाद में उनको अच्छी मुलाजमतों पर खड़ा किया, अच्छी तिजारतों के अंदर लगाया। लेकिन मुस्लिम कौम का एक खास मिजाज ये है
कि वो दुनिया के अंदर और तमाम चीज़ों के ऊपर खर्च करती है, अगर वो कौम खर्च नहीं करती तो तालीम के ऊपर खर्च नहीं करती, जबकि उसको तालीम के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। हज़रत मौलाना अली मियां साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू ने तकरीबन अब नहीं, अब से 50 साल पहले कहा था कि हमारी कौम को अगर तरक्की करनी है और अपने लोगों को आगे बढ़ाना है तो अपने बच्चों के ऊपर वो इतना खर्च करे तालीम के ऊपर कि जितना वो उनके खाने पर, दवाई पर, कपड़ों पर खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा उनको अपने बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च करना चाहिए। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा अपने लोगों से, अपने तलबा से कि हमें तालीम से जुड़ना है, हमें दीनी तालीम भी हासिल करनी है और असली उलूम भी हमें हासिल करने हैं और हमें खुद उन बातों के ऊपर अमल करना है और दूसरे लोगों को भी इल्म दीन और इल्म दुनिया से हमें जोड़ना है। तो इससे इंशाअल्लाह हमें फ़ायदा पहुँचेगा, हमारी कौम तरक्की करेगी। जो हम अफराद और कौम की गुलामियत से निकले हैं, लेकिन जहनी जो हमारी गुलामी है उस जहनी गुलामी से आज तक हम नहीं निकले, उसके निकलने का जरिया और सबब यही है जब हमारी कौम के पास में सही तालीम होगी और सही नज़्म होगा तो फिर हम उनकी जहनी गुलामियत से भी इंशाअल्लाह निकलेंगे। परवरदिगार आलम हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, अगर इससे क्या हज़रात को मिठाई तकसीम की जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका मदरसा खादिमुल उलूम तकरीबन एक सदी से उलूम दीनिया का बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दे रहा है, लेकिन आज वो वक्त आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह उलूम असलिया में भी आपके इदारे से मुंसलिक डिप्टी अब्दुल रहीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हमारे बच्चों का पहला बैच जिन्होंने हाई स्कूल को टॉप किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो फारिग हो चुका है। मैं दरख्वास्त करूँ उन सभी बच्चों से कि जिन्होंने हाई स्कूल पास किया है वो स्टेज पर तशरीफ लाए और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपने मुक़द्दस हाथों से हमारे बच्चों को शील्ड देकर इनकी हौसला अफजाई फरमाए और उनको अपनी नेक दुआओं से नवाजें। एक मेहमान को दो, एक बच्चे को करेंगे। ये बच्चा है अब्दुल मतीन, माशाल्लाह ये स्कूल का टॉपर भी है और इस बच्चे ने हमारे यहाँ से हाई स्कूल भी कंप्लीट किया है। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से दरख्वास्त करूंगा कि इस बच्चों को अपनी नेक दुआ से नवाजें। जी सर। अब्दुल मलिक, क्या नाम है? अब्दुल अहाद, इस बच्चे ने माशाल्लाह स्कूल किया है। जोरदार तालियों के साथ बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। क्या नाम क्या है? उबैदुर रहमान, मोहम्मद अबूजर, मुस्तफ़ा गौहर, इन दोनों बच्चों ने भी माशाल्लाह ऐसे स्कूल पास किया है। अल्लाह ताला तमाम बच्चों की उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए और इनको तरक्कियात की हर मंजिल तक पहुंचाए। ये स्कूल टॉपर है हमारा बच्चा अब्दुल मतीन, इसने क्लास को भी टॉप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल को भी टॉप किया है। इसके लिए भी जोरदार ताली से इस्तकबाल किया जाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। अब मैं आप सभी से बड़े ही अदब से दरख्वास्त करूंगा कि अब हम आप लोगों के लिए मिठाई का इंतजाम किया गया है। इंशाअल्लाह कोई भी तालिब इल्म नहीं छूटेगा। बराए मेहरबानी आप इत्मीनान के साथ एक एक करके अपनी मिठाई लेकर के जाएंगे। मैं असातिज़ा से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी इसमें मुआवनत फरमाए। मिठाई को उधर ही रख के निकाल दे रहे, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सभी को 5 मिनट के अंदर मिठाई मिल जाएगी।